So guys, for a study, let's start with a word for a study, which is network. So guys, what do you guys understand by the word network? As a layman, कुछ टेक्निकल नहीं, ऐसे नेटवर्क से क्या समझ आता है, दिमाग में क्या लगता है आपको? नेटवर्क क्या होता है? To create a connection. To create a connection, right? Anyone else? नेटवर्क से आप क्या सोचते हो? रियल लाइफ में नेटवर्क क्या हो सकता है? इफ आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड सर्कल, मेरे जो फ्रेंड है तो वो भी एक तरह से मेरा नेटवर्क है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ, राइट गाइस? Yes, sir. Right everyone? Right. Yes. So to be precise, can I write that a network, it is a group of it is a group of host devices connected to each other and communicate, to be precise, in the world of networking? Can I say that? Right? So a network is a group of host devices connected to each other and communicate. So guys, you guys could see कि मैंने devices की जगह host device लिखा है, तो आप लोग को host devices से क्या समझ आता है? What do you understand by the word host device, guys? Anyone? Host devices मतलब? कुछ भी, जो भी आपको लगता हो, सुमित, युवराज, रोहतस, ऋतिक, प्रवीण, अनन्या, एनीथिंग। होस्ट डिवाइस से क्या समझते हो? ऐसा कुछ वो नहीं, कोई टेस्ट हो रहा है, बस जस्ट गेस करो। जहाँ से नेटवर्क इनिशिएट हो और अच्छा। सब नेटवर्क्स तक ठीक है, कनेक्शन। ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हो जो एक सर्विस दे, कुछ इनिशिएट करे सर्विस एक तरह से, राइट? यस सर, जहाँ से नेटवर्क या कम्युनिकेशन आपका, जैसे आप कह रहे हो सर्वर जैसे सर्विस देता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, राइट? राइट। तो गाइस, इन द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्किंग वी कॉल्ड ऑल द डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस है ना आपकी, लैपटॉप, सर्वर्स, प्रिंटर्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स, एनीथिंग, पीसीज, एनीथिंग, दे ऑल आर योर होस्ट डिवाइस ओनली। होस्ट डिवाइस हम नेटवर्किंग में उसे कहते हैं जो डिवाइस एक आईपी ले सके, राइट? आइदर डायनेमिकली और स्टैटिकली, वो हम लोग सीखेंगे, उसकी टेंशन मत लो, वो आगे हम सीखेंगे कैसे होगा वो सब। पर होस्ट डिवाइस अभी की याद रखो, जो विच कैन टेक एन आईपी, राइट? मेरे पीसीज के आईपी है, मेरे डिवाइसेस के आईपी है, सर्वर के आईपी है, लैपटॉप्स के आईपी है, राइट गाइस? सो whichever device which can get an IP, we call in the networking as host device only. I could write device only, but in network we call it host device which can get an IP. Understood everyone? Right everyone? Yes sir. Yeah. So guys, let's just see this. Let's suppose I have two devices. This is my PC and this is another PC. So guys, are these two PCs are in a network right now? No sir. No. But No sir. no, right? But if I connect them with a cable, are they now in a network? Yes sir. Now it is in network. Yeah, because yes, sir. our network is a group of host devices connected to each other and communicate. They are connected to each other and they can communicate, right everyone? Now they're in a network, right everyone? Yes. Right. Yes sir. But Now इसमें guys, host कौन होगा? दोनों होस्ट डिवाइसेस, दोनों मैंने बताया ना, सारे पीसी सब होस्ट डिवाइसेस है। होस्ट डिवाइसेस इज नॉट लाइक अ सर्वर, कोई सर्विस दे। होस्ट डिवाइस हम सारे डिवाइसेस को होस्ट डिवाइसेस कहते हैं जो एक आईपी ले सके। तो इसकी भी कोई आईपी होगी, इसकी भी आईपी होगी, अगर सर्वर होता तो उसकी भी कोई आईपी होती है, लैपटॉप होता तो उसकी भी आईपी होती है, ठीक है? सबको हम लोग होस्ट डिवाइसेस कहते हैं। अंडरस्टैंड? ओके सर, ओके। धीरे धीरे जैसे बढ़ते रहेंगे तो आपको और जो आपका एक माइंड में एक पिक्चर होगी, एक पजल होगा, वो क्लियर होता रहेगा, ठीक है? उसकी टेंशन मत। Hello sir, am I audible? Am I audible? Okay. Who just joined? Josen Roband, right? Johnson Robert sir. Johnson Robert. Yeah, Johnson. You are audible. How about you? Just joined, right? Yes sir, yes sir. You are from? From Bangalore. Bangalore. So, Johnson, what are your hobbies and what are you doing right now? I'm currently working at a civil engineering construction site. Right. And you want to switch to IT sector?
Yes, sir. Yes, sir. I was planning to do some cryptography subjects. Understand. Understand. So you are doing 1 year diploma only from here or 6 months? Johnson? Hello, Johnson. Your voice is breaking, Johnson. Now it is on. Right, guys. Everyone understood this thing, this term at the Ethernet standard? It is a standard set so that the devices could communicate with each other in local network, right, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So networking is the fully theory or practical, sir? It is both. First, I will for first week it would be theory only. From the second week, I will explain the concept, and then the practical will also be there from next week, right? So more it is 60-70% practical only, and 30% is theory, right? Because first you have to get the basics of what is networking, then we could only jump to practical thing, right? Everyone? Exactly, sir. Right. Johnson, you asked me, right? Or someone else? Yes, sir. Johnson, Yes, sir. you understand little bit of Hindi also? Little bit of Hindi also? Yes, sir. हिंदी में भी बात कर सकते हैं. कर सकते हैं ना, क्योंकि बिकॉज आपकी वजह से ना मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ता, क्योंकि मुझे लगा आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, ठीक है? क्योंकि मेरे जो और स्टूडेंट भी है और बैच में, दे आर आल्सो फ्रॉम बैंगलोर एंड फ्रॉम हैदराबाद एंड साउथ आल्सो, सो आई हैव टू Sir, I have also a problem in English, sir. Not so much understanding. ठीक है, फिर हिंदी में ही कर लेंगे, ठीक है? ठीक है जॉन सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? सर माइंडसेट वैसे इंग्लिश में है, वैसा कोई बात नहीं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. I will send you recording of English also, so okay, don't worry, I have that recordings also with me, right? Don't worry. Yes, बीच sir, बीच में कर super, लेना sir. सर, इतनी भी नहीं समझ सर, समझ सकते हैं. हाँ नहीं, अरे ब्लेंड करके बोलूंगा, Sir. हिंदी इंग्लिश दोनों, टेंशन मत लो. Yes, ऐसा sir. नहीं हिंदी कि इंग्लिश बेस्ट है सर. हाँ वही करूंगा, ऐसा नहीं कि वार्तालाप पे आ जाओ हिंदी पूरा, वैसा नहीं, वो वाला नहीं, कम्युनिकेट ही कर रहा हूँ. चलो ठीक है. अच्छा समझ तो आ गया, इतने तक सबको समझ आ गया? ऋतिक, किसको दिक्कत है थोड़ी सी? सुमित, समझ तो आ रहा है ना? शुरू से बता दो. ईथरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है? इंटरनेट इथरनेट अभी पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो, अभी समझोगे धीरे धीरे सारी चीजें पजल होंगे, और टेंशन मत लो, अनफोल्ड होते रहेंगे. इथरनेट, अच्छा ये समझ गए नेटवर्क क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ होस्ट डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर एंड कम्युनिकेट, ठीक है? होस्ट डिवाइसेस किसे कहते हैं? जो एक आईपी ले सके. सारे सर्वर, लैपटॉप, पीसी सब डिवाइसेस है, पर नेटवर्किंग में हम इन डिवाइसेस को होस्ट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये आईपी ले सकते हैं, ठीक है? आइदर स्टैटिकली और डायनेमिकली. अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर. ये होता है. फिर मैंने 2 पीसीज लिए और उसको कनेक्ट किया इथरनेट केबल से टू मेक देम इन अ नेटवर्क, राइट? वो नेटवर्क में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं. ये केबल थी इथरनेट केबल. व्हाई वी कॉल इट इथरनेट केबल? बिकॉज इथरनेट इज अ टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी है जिसके कुछ स्टैंडर्ड सेट है, इसको कहते हैं हम इथरनेट स्टैंडर्ड. लेट सपोज ये डिवाइस के पोर्ट है, ये भी पोर्ट है, ठीक है? तो इसका कुछ स्पेसिफिक साइज है, कुछ शेप है. इस केबल का भी जो इंसर्ट हुआ है इस पोर्ट में, इसके भी पिन के कुछ स्पेसिफिक साइज और शेप है. तभी जो है ये जो केबल है ये पोर्ट में गया और दे कुड कम्युनिकेट, मतलब कुछ स्पेसिफिक साइज और शेप है, उसको कहते हैं हम लोग इथरनेट स्टैंडर्ड, ठीक है? तो लोकल नेटवर्क में आपके इथरनेट स्टैंडर्ड होते हैं, जिसके वजह से आप बातें कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस. यू कैन कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइसेस, राइट एवरीवन? अब अंडरस्टूड सबको? यस सर. Yes, sir. ग्रेट. सो गाइज, अगर मैं आपसे 1-to-1 कम्युनिकेट करूं, ठीक है, 1-on-1, राइट? और मैं अगर एक ग्रुप से बात करूं एक क्लास में, ठीक है, लेट सपोज करते हैं मैं अभी एक से बात कर रहा हूं क्लास में, ठीक है? ये एक सिनारियो है, एक सिनारियो मेरा, मैं एक से बात कर रहा हूं 1-to-1. एक सिनारियो मेरा कि मैं 2-3 लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक है, एक ग्रुप से बात कर रहा हूं.
और एक सिनारियो मेरा, क्लास में जितने भी लोग हैं ना, आप सब लोग सबसे बात करो, ठीक है? ये एक सिनारियो है। अब इसी के बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट एवरीवन? पहला है आपका यूनिकास्ट। यूनिकास्ट मतलब वन सेंडर एंड वन रिसीवर, दैट मीन्स वन टू वन कम्युनिकेशन, ठीक है? वन टू वन कम्युनिकेशन मतलब एक बात कर रहा है और एक रिसीव कर रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes. Next is multicast. Multicast is one sender and many receiver. Many receiver means मैं एक ग्रुप से बात कर रहा हूँ, एक से ज्यादा, ठीक है? मैं जब इस ग्रुप से बात करते दूसरे सिनारियो में, दैट मीन्स मैनी रिसीवर, एक ग्रुप से बात कर, मतलब एक से ज्यादा लोग, मैनी रिसीवर, ठीक है? दैट इज मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। हमारे कॉलेज में एक ऑल्टो गैंग होता था, ऑल्टो से आते थे 6 लोग, तो भाई जब भी ऑल्टो गैंग बोलते थे वही 6 लोग रिप्लाई करते थे, भले ही क्लास में बहुत लोग हैं, 30-40 लोग, पर अगर ऑल्टो गैंग बोला तो वही 6 लोग रिप्लाई करते थे, राइट? तो मतलब एक ग्रुप से बात कर रहा हूँ, तो एक ग्रुप का एक नाम है। तो ये जो मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन होता है, इसके कुछ एड्रेसेस होते हैं जिसको आपको रटना पड़ता है, जो आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा ना, मैं आपको बताता रहूंगा कैसे होगा, ठीक है? नेक्स्ट इज गाइस ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा यार? युवराज, ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा? वन सेंडर एंड ऑल रिसीवर, राइट जॉनसन? यही था? यस सर, यस सर। या ऋतिक, सुमित, Yes, sir. समझ आ रहा है? जी Yes, सर। sir. Yes, sir. अनन्या एंड रोतस, Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग राइट? Yes, ग्रेट sir. ग्रेट गाइस, अभी ये जो क्लास हो रही है हमारी जूम पे हो रही है ना, जी। तो ये ऑनलाइन हो रही है ऑफलाइन? Online. Online. ऑनलाइन। अगर यही तुम ऑफिस में आके करते आप सब लोग तो ऑफलाइन होती, राइट? Yes, sir. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ Communication. कम्युनिकेशन। इसमें पहला है आपका सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मीन्स वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन मीन्स, लेट सपोज 2 डिवाइसेज हैं, एक ही सेंडर है और वन वे कम्युनिकेशन, मतलब एक ही तरफ जा रहा है, सेंडर सिर्फ सेंड करेगा और रिसीवर से रिसीव करेगा। लाइक टीवी, टीवी जब ब्रॉडकास्ट होता है हम सिर्फ देख सकते हैं ना, कुछ सेंड कर सकते हैं टीवी पे, सिर्फ ब्रॉडकास्ट होता है, राइट एवरीवन? वैसे ही रेडियो ब्रॉडकास्ट आल्सो, राइट एवरीवन? रेडियो सेंड कर रहा है, कुछ हम सुन ही रहे हैं ना, वो तो कुछ वापस तो नहीं भेज रहे उसे। एंड ऑल्सो जब हम लोग कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं तो मॉनिटर पे शो करता है, राइट? कुछ मॉनिटर वापस कीबोर्ड पे भेज सकता है नहीं? तो वन वे कम्युनिकेशन वो भी है, राइट एवरीवन? अंडरस्टूड? Yes, sir. या कि सेंडर से सेंडर की तरफ वर्क करेगा और रिसीवर से रिसीव करेगा, राइट? ओके, द नेक्स्ट वन इज हाफ डुप्लेक्स। It is a two-way communication but not at the same time. But not
at the same time. That means दो डिवाइसेस हैं, राइट गाइस, दोनों डिवाइसेस इस बार सेंडर और रिसीवर की तरफ वर्क कर सकती है, ठीक है। पर जब सेंडर सेंड करेगा ना तो ये सिर्फ रिसीव करेगा, ये कुछ सेंड नहीं कर सकता। बट द मोमेंट सेंडर ने अपना सारा प्रोसेस फाइल ट्रांसफर का खत्म कर दिया, सेंडिंग प्रोसेस खत्म कर दिया, तब ये रिसीवर भी सेंड कर सकता है, वर्क एज अ सेंडर, और जो दूसरी डिवाइस है वो रिसीव करेगी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम सेंड और रिसीव नहीं हो सकता। अगर सेंडर सेंड कर रहा है तो ये रिसीव करता रहेगा, जब इसने सेंडिंग खत्म कर दिया तब रिसीवर भी सेंडर वर्क करके कुछ फाइलें सेंड कर सकता है। अंडरस्टूड? तभी बोला है टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट एट द सेम टाइम। एवरीवन अंडरस्टूड? Okay. Yes, sir. ऋतिक, प्रवीण, Got it. रोहतस, अनन्या, युवराज, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. सर कोई एग्जांपल जैसे दे रहा हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ। वॉकी टॉकी, यस Yes, sir. राइट एवरीवन? Right, sir. एक और एग्जांपल है जो मैं आप सबसे पूछूंगा, जिसको आप रोज यूज करते हैं अपने मोबाइल में भी, आपके इस वक्त कमरे में भी, आपके जहां भी आप लोग हो अभी, आप लोग रोज यूज करते हो। इसका एक और एग्जांपल है, प्लीज टेल मी क्या। सोचो आराम से, ज्यादा आराम से नहीं, 30 सेकंड के लिए। सर मैं Okay. समझा नहीं। इसका एक और एग्जांपल बताओ, टू वे कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स का। ओ अच्छा अच्छा। वॉकी टॉकी बता दिया मैंने, एक और बताओ। फोन कॉल नहीं यार, फोन कॉल नहीं, फोन कॉल कैसे फोन हो में जाएगा? आप सब फोन में ऐप्स जो रहते हैं ऐप्स जैसे कि शेयर इट करना, सोचो 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 थोड़ा सा और। सर शेयर इट में सिर्फ शेयर कर सर, सकते हैं अगर वो रिसीवर पर शेयर इट में दोनों तरफ एक साथ कम्युनिकेशन भी हो सकता है, कोई लिमिटेशन तो नहीं है ना। नो सर, एक अगर सर शेयर मैसेज कर रहे हैं तो मैसेज सर में मैसेजेस लिमिटेशन है। में, क्योंकि यस सर, क्योंकि वंस यू सेंड अ मैसेज वो एक साथ नहीं जाता है, उस सामने वाले को साइमल्टेनियसली नहीं जा सकता ना वो। बट अनन्या, जब आप टाइप कर रहे हो सामने वाले भी टाइप तो कर सकता है ना, भले ही वो दिखता थोड़ा आगे पीछे है, पर टाइप तो दोनों एक साथ कर सकते हैं ना, कोई लिमिटेशन है उसमें? पर अनन्या, नो सर। नो ना लिमिटेशन। हाफ डुप्लेक्स इज द लिमिटेशन कि जब वो सेंडर सेंड कर रहा है तो रिसीवर चाह के भी सेंड नहीं कर सकता, राइट? एनीवन? ओके, व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय Alexa or okay Google? Once you say something, then only reply come. And also in the case of what? Web surfing, आपको सर्च करोगे, जब तक एंटर नहीं करोगे रिप्लाई आएगा क्या? राइट? सो इट इज व्हाट? हाफ डुप्लेक्स, राइट एवरीवन? अंडरस्टूड? अनन्या नाउ? Yes, sir. सर मैं समझा नहीं। यस सर। कौन सा? ना सर। टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट एट द सेम टाइम। दैट मीन्स जब सेंडर सेंड करेगा तो रिसीवर रिसीव करता रहेगा, वो सेंड नहीं कर सकता। दैट मीन्स मैंने अगर वेब सर्फिंग करी, मैंने लिखा facebook.com, राइट? मैंने कुछ सेंड किया, तो जब मोमेंट मैंने facebook.com करके एंटर मारा, ठीक है, आई एंटर्ड इट, मेरी रिक्वेस्ट पहुंची वहां तक, दैट मीन्स मैंने सेंड करके अपनी रिक्वेस्ट पहुंचा दी। नाउ जब वो सर्वर रिप्लाई करेगा, फेसबुक का सर्वर, तो वो फिर सेंड करेगा। पर टू वे कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम हुआ, जब तक मैंने सेंड करके रिक्वेस्ट करके एंटर नहीं किया तब तक रिप्लाई नहीं आया ना, राइट जॉनसन? दैट मीन्स Yes, टू वे yes, कम्युनिकेशन sir. बट नॉट एट द सेम टाइम, दैट व्हाट इट मीन्स, राइट एवरीवन? सर ये वही हो गया सर, कॉलिंग बेल वाला। कॉलिंग में लिमिटेशन नहीं है। घर पे कोई कॉलिंग बेल दबाते हैं, हम ओपन करें ना करें वो रिस्पॉन्स है ना सर। बट देयर इज अ लिमिटेशन और नॉट? देयर इज नो लिमिटेशन, राइट? अगर वो रिस्पॉन्स करो तुम, अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे, सॉरी अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो आप रिस्पॉन्स तो दे सकते हो ना, लिमिटेशन है? कोई रोक रहा है आपको? नहीं, दीज आर लिमिटेशन, राइट? एलेक्सा व्हेन यू से सिंग अ सॉन्ग, तो जब आप बोलते सिंग अ सॉन्ग देन रिप्लाई आता है ना, वो सॉन्ग चलाती है, राइट एवरीवन? ओके, अंडरस्टूड ना एवरीवन? यू गाइस आर विथ मी? Yes, sir. युवराज समझ आ रहा है? ऋतिक,
प्रवीण रोहतस यस सर। Yes, sir. चलो ठीक। भाई साहब रोहतस ने तो कितने 10-15 बार यस बोल दिया। चलो नेक्स्ट इज फुल डुप्लेक्स। यार अगर हाफ डुप्लेक्स ये है तो फुल डुप्लेक्स क्या होगा? एनीवन? So they can एनीवन? सर आप जब डुप्लेक्स बोलते हैं तो मेरे को बिल्डिंग का याद आता है सर। अरे यार तुम सिविल में मत जाओ, अभी इधर आ गए हो, समझे? ऑल राइट सर। हाँ डोंट वरी, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन बट एट द सेम टाइम, राइट? अगर हाफ डुप्लेक्स है कि एट द सेम टाइम नहीं हो सकता, तो फुल डुप्लेक्स क्या हो जाएगा? टू वे कम्युनिकेशन बट एट द सेम टाइम। अब एग्जाम्पल में सब फोन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सब कुछ, राइट एवरीवन? नो लिमिटेशन, राइट अनन्या? यस सर। राइट, दैट मीन्स अगर दो डिवाइसेस हैं, दे कुड बोथ वर्क एज सेंडर एंड रिसीवर, और एक ही टाइम पे बात कर सकते हैं, लाइक योर फोन कॉल और मैसेजेस। राइट एवरीवन, अंडरस्टूड दिस थिंग? मतलब कि जब सेंडर Yes, सेंड sir. करे तो रिसीवर भी सेंड कर सकता है, और रिसीवर जब सेंड करे तो सेंडर भी सेंड कर सकता है। अंडरस्टूड एवरीवन? नो लिमिटेशन। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते आप उससे कुछ बोल दो तो कोई लिमिटेशन है? नहीं, बात हो रही है, टू वे कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम, राइट एवरीवन? यस सर। ग्रेट, ओके गाइस, लेट्स जस्ट स्टार्ट our next study with a example. जॉनसन, यस सर। बैंगलोर में बैंगलोर में कोई नेटिव लैंग्वेज क्या है? नेटिव लैंग्वेज बैंगलोर में? कन्नड़ा सर। कनाडा। हाय Yes, क्या sir. कहते हैं? हाय हाय कनाडा में कुछ हाय है? कनाडा में हाय को क्या कहते नमस्कार। हैं? क्या? नमस्कार। नमस्कारा। हाँ, हाँ सर। यस सर। नमस्कारा। ठीक, लेट सपोज करो यार, ये जॉनसन है, ये मैं हूं। अनन्या, आर्टिस्ट मैं भी बन सकता हूँ क्या? ऐसे चांस है क्या? सर थोड़ा? आप नो सर। नो ही नहीं, अरे यार आई हैव टू स्टिक विद नेटवर्किंग ओनली, ठीक है, नो वरी। ट्राई करना पड़ेगा थोड़ा। बहुत बहुत लग रहा है मुझे ट्राई, मुझे तो लग रहा है ट्राई करने से भी नहीं हो पाएगा। चलो बढ़िया, ठीक है। मेरी इस एग्जाम्पल में एक मेरा एजम्पशन है, मेरा एजम्पशन ये है गाइस कि ये इन दोनों को एक ही लैंग्वेज आती है, राइट? इन दोनों को एक ही लैंग्वेज आती है। लेट्स सपोज इसको आती है, जॉनसन को आती क्या? कन्नड़ा, एंड आई नो ओनली हिंदी, राइट गाइस एवरीवन? राइट। सो इन आइडियल वे में बताओ यार, क्या कम्युनिकेशन हो सकता है आइडियली? नो सर। नहीं हो सकता, राइट? व्हाट विल बी द ऑल्टरनेटिव, मतलब सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? ये लोग कम्युनिकेट So कर लें। either you learn Kannada or he learns Hindi, or you learn a similar language. एग्जैक्टली, दैट मीन्स या तो कोई ट्रांसलेटर हो बीच में तो थोड़ी बात हो सकती है, नहीं तो एक कॉमन लैंग्वेज हो, राइट? अभी वर्ल्ड में गाइस ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज क्या है? कॉमन लैंग्वेज क्या है वर्ल्ड में, राइट? क्या है? बॉडी लैंग्वेज। इंग्लिश, राइट? Yes, sir. Right. So if they both have English in common, now they could communicate ideally, right? They can communicate. जब इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज आ गई, जैसे मैं आया, जैसे आप सब ज्वाइन हुए, मैंने क्या बोला? गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, क्योंकि यार वो तो पता ही है, बेसिक है। कभी ये तो ना बोलूंगा हाँ भाई कैसा है, ऐसा तो नहीं बोल रहा ना मैं, कि कोई इंग्लिश में हो, कोई कहीं का हो, कोई बाहर का हो, नहीं पता होता, पर इंग्लिश तो ये बेसिक सबको पता है, राइट एवरीवन? Right, sir. राइट।
तो अच्छा, कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन टेंडेंसी भी है क्या कि बोल कुछ भी ले, सुन कुछ भी ले, कहीं ना कहीं अब हम अपनी मदर टंग में इंटरप्रेट करते हैं चीजें। डैट मीन्स अगर मुझे हिंदी आती है तो, या किसी को आती है, युवराज को हिंदी आती है जैसे, तो वो मैं कुछ भी बोलूँ, युवराज यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, वो कहीं ना कहीं इंटरप्रेट मन में तो यही कर रहा है ना कि सर ये कह रहा है, सर वो कह रहा है, सर ये करने को बोल रहा है, सर ये पढ़ा रहा है, ऐसे ही सोचेगा ना, इंटरप्रेट करेगा वो। ह्यूमन टेंडेंसी यही है, राइट? चाहे कितनी कमांड आ जाए, राइट। तो इसी टेंडेंसी में लेट सपोज जॉनसन ने मुझे हाय बोला, तो जॉनसन जो है अपने मन में सोचेगा नमस्कारा, राइट? नमस्कारा मन में सोचा उसने, पर जब वो बोलेगा तो वो इंग्लिश में बोलेगा हाय। मैं सुनूंगा इंग्लिश में, और कहीं ना कहीं जो उसने हाय बोला उसको कहीं ना कहीं हिंदी में इंटरप्रेट करूंगा, राइट? सेम वे मैं रिप्लाई करूंगा हिंदी में सोच के, पर जब बोलूंगा तो इंग्लिश में, और जॉनसन इंग्लिश में सुनेगा और कहीं ना कहीं कनाडा में उसको इंटरप्रेट करेगा, राइट गाइस, एवरीवन? Yes, sir. यही आइडियल वे कम्युनिकेशन है, ह्यूमन कम्युनिकेशन, राइट एवरीवन? युवराज, Yes, रोहतस, sir. Right. अनन्या, प्रवीण एंड Yes. सुमित, राइट? Right, sir. राइट, एंड ऋतिक ऑल्सो। Yes. ऋतिक अंडरस्टूड? Yes, sir. यस यार, ये वो वाली ड्राइंग लग रही है, वो वेलकम वाली, अनिल कपूर वाली। वो वाली फीलिंग आ गई मुझे। चलो, सर आप बन सकते हो ग्राफिक क्या कह रहे हो? ग्राफिक डिजाइनर नाउ। हाँ भाई, ग्राफिक डिजाइन बन गया ना भाई, बस कंपनी ब्रोक हो जाएगी। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टडी। अब यही चीज जो मैंने ये एग्जांपल दिया, इसको हम लोग नेटवर्किंग में समझते हैं, राइट गाइस? अर्लियर क्या होता था, एक कंपनी थी, लेट सपोज आईबीएम। आईबीएम तो सबने सुना है, Yes, sir. राइट? और एक और कंपनी आईबीएम जैसी, कंप्यूटर कंपनी, वेंडर कंपनी, दैट इज डेक। यू कैन से डेक ऑल्सो, एचपी भी ले सकते हो, डेल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब कोई भी वेंडर कंपनी जो कंप्यूटर्स बनाती है, राइट एवरीवन? राइट। अर्लियर क्या होता था यार, जब ये इथरनेट स्टैंडर्ड नहीं थे ना, ये स्पेसिफिक साइज और शेप, ये कॉमन स्टैंडर्ड नहीं थे, और जब राउटर या स्विचेस नहीं थे, राइट? तो इन सब डिवाइसेस के ना, इन सारी कंपनियों का क्या होता था, खुद का प्रॉप्रिएटरी होता था। प्रॉप्रिएटरी से क्या समझते हो, कोई बता सकता है मुझे प्रॉप्रिएटरी मतलब? एनीवन? ऋतिक, Sir, can you repeat? प्रॉप्रिएटरी मतलब? Proprietary. हाँ, प्रॉप्राइटरी मतलब Ownership. ओनरशिप। एग्जैक्टली। कोई चीज मेरी खुद की ओन्ड हो, मतलब एक्सक्लूसिवली माइंड, आई हैव अ राइट ऑन इट, राइट? मतलब अर्लियर क्या होता था, जब ये स्टैंडर्ड नहीं थे, तो इन सब के खुद के प्रॉपर्टी होते थे। आईबीएम के खुद के प्रॉपर्टी, डेक के खुद के प्रॉपर्टी, एचपी, डेल, सबके खुद के प्रॉपर्टी। दैट मीन्स खुद के प्रोटोकॉल थे, खुद के स्टैंडर्ड थे, खुद के सॉफ्टवेयर थे। तो उससे क्या हो रहा था, ये सब जितनी भी डिवाइसेज है ना, ये सब आपस में तो कम्युनिकेशन कर ले रहे थे कि यार खुद के स्पेसिफिक साइज और शेप है, पोर्ट्स हैं, स्टैंडर्ड्स है, राइट? ये भी, इनके भी वेंडर खुद के डिवाइसेस में तो कम्युनिकेट कर रहे थे, पर प्रॉब्लम जब आ रही थी व्हेन दे ट्राई टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। डिफरेंट वेंडर जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई कॉमन स्टैंडर्ड ही सेट नहीं था, राइट एवरीवन? Yes, sir. और हम लोग इंटरनेट पे जब जाते हैं, बात करते हैं ये सब, तो कितने लाखों वेंडर्स होंगे, राइट? डिफरेंट डिवाइसेस होंगी। तो जब तक कॉमन स्टैंडर्ड सेट नहीं होगा, तो कैसे हम लोग बात करेंगे, कैसे वो पोर्ट से कनेक्शन जाएगा, कैसे कौन सा करंट जाना है, कौन सा तार यूज होना है, कौन सा केबल यूज होना है, कौन से पोर्ट, कौन से पिन, कौन सा वोल्टेज, कैसे होगा? कोई कॉमन स्टैंडर्ड सेट नहीं होगा, राइट एवरीवन? Yes, sir. राइट। तो इसी को मिटिगेट करने के लिए, और रिड्यूस, आई कुड से रिड्यूस करने के लिए, आईएसओ ने, आईएसओ नाम सुना है किसी ने? Yes, sir. It is International Organization of Standardization. यस सर। International, you would know, क्योंकि आपके में स्टैंडर्ड होते हैं सिविल में, राइट? यस सर, बहुत होता है सर। I know. International Organization of Standardization. ये जो आईएसओ है, ये एक मॉडल लेके आई
एक मॉडल लेके आए, एक कॉमन मॉडल लेके जिसके जिसके ऊपर सारी डिवाइसेस, जितनी भी वेंडर डिवाइसेस है, उसी स्टैंडर्ड के ऊपर अपनी डिवाइसेस को बनाएं। ठीक है, उसको हम कहते हैं, इस मॉडल का नाम है OSI मॉडल। राइट एवरीवन? सो इट इज अ कॉमन मॉडल, इट इज अ ओपन स्टैंडर्ड। ओपन स्टैंडर्ड मतलब गाइस, ओपन स्टैंडर्ड मतलब widely acceptable. एग्जैक्टली, ग्लोबली एक्सेप्टेबल, राइट, एग्जैक्टली, जो हर कोई यूज कर सकता है। दैट इज, इट इज अ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओके, OSI मींस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। राइट एवरीवन? ये एक 7 लेयर मॉडल है जो साफ साफ बोलता है तुम्हारा डाटा कैसा भी हो, बस मेरे लेयर्स में भेज दो, मैं उसको ट्रांसलेट करके रिसीविंग एंड पे भेज दूंगा। कम्युनिकेशन मेरा काम है सक्सेसफुल कराने का। ठीक है एवरीवन? अंडरस्टूड दिस थिंग, OSI मॉडल, अ कॉमन मॉडल दैट वी नीडेड। अंडरस्टूड? और इसको ना, OSI मॉडल को हम लोग रेफरेंस मॉडल कहते हैं। रेफरेंस मॉडल से क्या समझते हो? एनीवन? रेफरेंस मतलब रेफरेंस, एग्जाम्पल, राइट। अगर मैं बोलूं यार ये कॉपी से ना रेफरेंस ले लिया, दैट मींस तू देख ले नोटबुक से और अपने हिसाब से समझ के लिख ले। राइट एवरीवन? यही होता है रेफरेंस मतलब, कॉपी कर ले बस। राइट? तो ये OSI मॉडल जो है ना, ये रेफरेंस मॉडल है। ओपन स्टैंडर्ड तो है, लोग सारे नेटवर्क इंजीनियर आज भी OSI मॉडल पे वर्क करते हैं, उसी को समझते हैं। पर क्या ये इंडस्ट्री में भी यूज होता है? नहीं, इंडस्ट्री में यूज होता है आपका TCP IP मॉडल। पर क्यों हम लोग OSI मॉडल पढ़ रहे हैं, TCP IP नहीं, ये भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा आगे चल के। ठीक है एवरीवन? Yes, sir. राइट, आज भी नेटवर्क इंजीनियर पर OSI मॉडल पे ही वर्क करते हैं सारे ग्लोबली। क्यों करते हैं ये भी पता चल जाएगा। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज अ OSI मॉडल। It is a 7-layer model, right guys? And don't worry guys, this thing will come gradually. थोड़ा थोड़ा लगता है बट अपने आप हो जाता है, जैसे ऐसे पढ़ते रहेंगे आगे। राइट एवरीवन? इट इज अ 7-layer मॉडल, जिसमें पहली लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंटेशन लेयर। ये क्या होती है मैं समझाऊंगा, अभी मैं लिख रहा हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। फिर आती है आपकी सेशन, देन आती है आपकी ट्रांसपोर्ट, देन इज अ नेटवर्क लेयर, data link is your next layer, and the other one is physical. Right everyone? This is a 7-layer OSI model. Right? Let's just take a overview ले रहा हूं मैं, फिर धीरे धीरे आपको एक एक लेयर समझाऊंगा अभी डिटेल में आगे क्लासेस में। आज हम ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है? एप्लीकेशन लेयर, आप सबके मोबाइल में एप्लीकेशन है, राइट? राइट? प्रवीण, युवराज, सुमित, अनन्या, ऋतिक, जॉनसन। yes sir, many applications. मैंने एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। अच्छा, हर एप्लीकेशन जो है एक स्पेसिफिक सर्विस दे रही है, एक प्लेटफॉर्म दे रही है स्पेसिफिक सर्विस को एक्सेस करने का। लेट सपोज आपके पास अगर जीमेल है तो मेल ट्रांसफर कर सकते हो आप, राइट? अगर आपके पास क्रोम है तो आप वेबसाइट वगैरह सर्च कर सकते हो, बहुत कुछ सर्च कर सकते हो, राइट? राइट एवरीवन? तो हर एक एप्लीकेशन एक सर्विस दे रही है, राइट एवरीवन? अगर आपको शेयरिट वगैरह है, जैसे अभी बताया था शेयरिट वगैरह, तो फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, राइट? राइट। तो लेट सपोज आपने एक वेब सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं, आप वेब सर्विस मतलब एक वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल पे वर्क करता है? हर एक सर्विस ना, हर एक एप्लीकेशन एक प्रोटोकॉल पे वर्क करती है। तो लेट सपोज मुझे वेब सर्विस एक एप्लीकेशन उसको एक्सेस करना है, तो जो प्रोटोकॉल है जिसपे वो वर्क करती है वेबसाइट और वेब सर्विस, उसे कहते हैं हम गाइस, किसी को पता है किस प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं? किसने बताया? रोहतस। एग्जैक्टली, रोहतस। एग्जैक्टली, इट इज
HTTP service, right? And लेट सपोज आपने सर्च किया www.http.com, जो भी आपने सर्च किया http.com कुछ भी, राइट? आपने वेब सर्विस सर्च करी, राइट? और फिर प्रोटोकॉल कॉल हुआ, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन है वो एक प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। वो प्रोटोकॉल नाम क्या है? HTTP। तो जो लेयर, ये जो एप्लीकेशन लेयर है, जो अलाउ करती है कि यूजर को जो डिजायर्ड एप्लीकेशन है वो मिल जाए, तो वो जो प्रोटोकॉल है वो कॉल कौन करता है? एप्लीकेशन लेयर, ठीक है? तो जो आपके एप्लीकेशन लेयर, ये जो प्रोटोकॉल है उसमें, ये HTTP, ये आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करता है टू गेट द यूजर डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है? तो आपको वेब सर्विस चाहिए तो HTTP प्रोटोकॉल कॉल करना है, तो ये एप्लीकेशन लेयर आपकी HTTP प्रोटोकॉल को कॉल करेगी, राइट एवरीवन? द सेम वे अगर आपको लेट सपोज मेल ट्रांसफर करना है तो SMTP। ये सब क्या होते हैं SMTP वगैरह, ये आगे आप पढ़ते रहोगे, अभी बस ओवरव्यू लो, बस समझते रहो, ठीक है? फाइल ट्रांसफर करना है तो FTP यूज होगा। अगर आपको ऑटोमेटिक IP चाहिए DHCP, राइट एवरीवन? तो ये जो प्रोटोकॉल है कॉल कौन करता है गाइस? एप्लीकेशन लेयर, राइट एवरीवन? लेट्स सपोज जैसे ही आपकी डिवाइस है, राइट? यहाँ पे एक सर्वर है, आपने एक वेब सर्विस की रिक्वेस्ट करी, कुछ भी करा, हाँ वेबसाइट चाहिए, रिक्वेस्ट करके एंटर किया आपको, ठीक है? अब ये यहाँ पे वेब सर्विस को कैसे पता चलेगा यार, वेब सर्वर को, कि किसके लिए रिक्वेस्ट है? तो एक प्रोटोकॉल कॉल होता है HTTP। वो कौन कॉल करता है? एप्लीकेशन लेयर, राइट एवरीवन? अंडरस्टूड? Yes, sir. आवाज थोड़ी कम होगी सबकी, क्या बात है? युवराज, रोहतस, प्रवीण, जॉनसन, अन्या एंड युवराज एंड ऋतिक, अंडरस्टूड ना? Yes, यस sir. सर। Yes. थोड़ा मतलब जज्बा रहे, ये नहीं कि पता ही नहीं सर बस पढ़ाए जा रहे हैं, हाँ? ठीक है, बताते रहना यार, कुछ भी डाउट भी हो बताना, हाँ? समझ गए ये चीज, सब समझ गए? अगर मुझे मेल ट्रांसफर करना है, मैंने मेल की रिक्वेस्ट करी तो SMTP प्रोटोकॉल कॉल होगा। कौन कॉल करेगा? ये एप्लीकेशन ले, राइट एवरीवन? Right, sir. राइट। प्रेजेंटेशन से क्या समझते हो यार? प्रेजेंटेशन वर्ड सब प्रिंट करवाना। एक सेकंड, रोहतस क्या लिख रहा है सर? DHCP बताना। DHCP आप समझोगे आगे चल के, रोहतस टेंशन मत लो, बट DHCP अभी समझ लो, ये आप डायनेमिकली ऑटोमेटिकली IP देना डिवाइसेस को, ये होता है। ये अभी आगे पूरे एक ही पूरा कॉन्सेप्ट है जो समझोगे आप, ठीक है? इस लाइनेक्स में भी है। या हाँ, तो प्रेजेंटेशन से कौन क्या कह रहा था? प्रेजेंटेशन मतलब प्रिंटिंग करना। presentation means to present something in an organized way, right? To Yes, organize sir. something, right? Yes, sir. Yeah. I don't know why you say printing. I don't know. Because printing could be bad. Then it doesn't mean it could come under what? Organized or presentation layer. Because presentation means to be in organized. Right, everyone? Yes, sir. Yes. Yeah. Let's suppose I am doing this, Facebook, whatever it is, and doing this, right? See, you see this Facebook web page, you are seeing this page, this has a Facebook logo, it has something written on it, there is a credential, फिर यहाँ पे create new account, मतलब सब कुछ एक organized way में, right? आपको login Yes. करना है, mail डालना है यहाँ, password डालना है यहाँ, हिंदी इंग्लिश जो भी चाहिए ये सब लिखा है, right everyone? तो ये सब काम किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर का, कि जब एप्लीकेशन लेयर पे कोई डाटा पहुंचे तो वो रीडेबल फॉर्मेट में, वो काम किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर का। और ये इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी करती है। और इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट मतलब गाइस, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट मतलब जो आपकी जैसे आप मेल वेल डालते हो क्रेडेंशियल, वो सिक्योर है, तो वो भी किसका काम है? प्रेजेंटेशन लेयर का। इट ऑल्सो डिकोड एंड इनकोड योर इंफॉर्मेशन। लेट सपोज करो आपके आपने कोई इमेज डाउनलोड करी और उस पर कंप्रेशन आ गया, मतलब फुल पिक्सल डाउनलोड नहीं हुई, ठीक है, कुछ कंप्रेशन आ गया, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी? रीट्रांसमिट करे और रीडाउनलोड करे ताकि वो कंप्रेशन हट जाए और मुझे फुल पिक्सल इमेज मिल जाए, ठीक है? तो वो भी काम किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर का। अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. या ओके। Now guys, what do you understand by the word session?
ओके, एनीवन? रोतो इज सेइंग कनेक्शन टाइमिंग को मैनेज करना। ओके, एनीवन एल्स? सेशन मतलब, सेशन से क्या समझते हो? ऐसे ही कुछ भी, जो भी गेस कर सको, कुछ भी बता दो। Session event. class like a class or event. Event. A session is which have a start or an end point, right? A different sessions I have. Like this session has a start from 12 to 2. It has a session, right? And then another session will become, another session will be created, right, everyone? So session is what? Let's take an example. Let's suppose आप लोग Instagram पे login कर रहे हो, ठीक है? आप Instagram पे login कर रहे हो, तो उस वक्त जब आप login कर रहे हो, क्या आप एक अकेले बंदे हो जो login कर रहा है Instagram पे उस वक्त, या बहुत सारे? हाँ, मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ पीपल होंगे जो लॉगिन कर रहे हैं आपके साथ ही अपने अपने डिवाइसेस पे, राइट एवरीवन? Right, sir. तो ये सर्वर होगा इंस्टाग्राम का सर्वर, इसको कैसे पता होगा कि यार किस डिवाइस से कौन सी रिक्वेस्ट आई है, कब किसने लॉगिन किया, कब इसने लॉग आउट किया? तो दैट मींस अ सर्वर हैज टू मेक डिफरेंट सेशंस, मतलब मिलियन एंड बिलियन ऑफ सेशन ही इट हैज टू बी क्रिएटेड, राइट एवरीवन? वेब सर्वर को बनाने पड़ेंगे कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई। अच्छा, जैसे तुम ही लोगो लॉग इन किया, लॉग आउट किया, लॉग इन किया, लॉग आउट किया, लॉग इन किया, लॉग आउट किया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, किसी पे भी, तो डिफरेंट सेशन आप खुद बना रहे हो, एक डिवाइस से मल्टीपल सेशन बन रहे, राइट एवरीवन? तो वो काम किसका है गाइस? वो काम किसका? वो डिफरेंट सेशन को करने का, मैनेज करने का, सेशन लेयर का। तो सेशन लेयर व्हाट इट डज, इट मैनेज, और आई शुड से इट एस्टैब्लिश। पहले तो एस्टैब्लिश होगा जब आपने लॉग इन किया, इट एस्टैब्लिश, फिर मैनेज जब तक आप उस में लॉग इन हो, एंड टर्मिनेट जब आप लॉग आउट करते हो, राइट एवरीवन? तो ये सब काम किसका है? सेशन लेयर का। अंडरस्टैंड एवरीवन? अनन्या, अंडरस्टूड? युवराज, सुमित, प्रवीण, Yes, sir. Yes, ऋतिक? sir. Yes, sir. ओके। अच्छा, आपने एक चीज देखी कि मैंने ना बहुत ऊपर ऊपर से थोड़ा बताया, ये इतना डेप्थ में नहीं गया मैं ऊपर की 3 लेयर में। क्यों? क्योंकि वी नेटवर्क इंजीनियर्स डोंट वर्क ऑन दीज 3 लेयर्स। ये जो 3 लेयर हैं इस पे हम लोग काम नहीं करते, हम लोग काम करते हैं नीचे की 4 लेयर्स पे। जो ऊपर की 3 लेयर है इस पे काम करते कौन है? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, सिस्टम इंजीनियर, राइट एवरीवन? नेटवर्क इंजीनियर का काम स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्ट लेयर से, राइट? Sir, या सर मैं अलग से एक कोर्स कर रहा हूँ क्रिप्टोग्राफी, इससे रिलेट होता है? उसमें क्या है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी को भी देखना पड़ेगा, उसमें भी अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, राइट? यस सर, मैथमेटिक्स एक्सप्रेशंस है। तो उसको ना आप मुझे ना क्लास के बाद बताओ, क्योंकि फिर मैं ढंग से बता पाऊंगा, राइट? ऑल राइट सर। या क्लास एक बार हो जाए फिर करते बात उस पर, राइट एवरीवन? वी वर्क ऑन नेटवर्क इंजीनियर्स ऑन ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, राइट एवरीवन? राइट। तो इसमें जो है हम लोग समझते हैं ट्रांसपोर्ट से क्या समझता है कोई? युवराज, ट्रांसपोर्ट से क्या समझते हो आप? So means transfer files. राइट, मतलब डाटा कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन से मीडियम से, राइट? Yes, sir. या तो इसमें 2 प्रोटोकॉल होते हैं, 2 प्रोटोकॉल पे डाटा जो ट्रांसमिट होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। पहला है उसमें गाइस, आपका पहला है उस पे TCP, नाम सुना है किसी ने? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट? एंड इट इज कॉल्ड अ रिलायबल कहते हैं इसे, प्रोटोकॉल को। क्यों कहते हैं रिलायबल? मतलब गाइस, रिलायबल मींस कौन बोल रहा है? बहुत स्लो आ रही है आवाज। Sir, trustworthy. ट्रस्टवर्दी, एग्जैक्टली, ट्रस्टवर्दी। लेट्स सपोज यार आप लोगों ने टॉरेंट से डाउनलोड करी कुछ वीडियो वगैरह, Yes, sir. राइट? तो लेट्स सपोज करो, ऐसा कहते नहीं हम लोग यार रात में लगा दे डाउनलोड पे, सुबह तक डाउनलोड हो जाएगी, कहते हैं ना हम लोग, Yes. अगर बड़ी फाइल हो। तो लेट्स सपोज करो आपके पास, आपको डाउनलोड करनी है एक 40
GB ब्लूरे, हाँ, एक फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है। आपने रात में लगा के 90% हो गया और फिर इसको पॉज या स्टॉप कर दिया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट डे आपने फिर से रिज्यूम किया, तो ये जो आपकी फाइल है ये 0% से स्टार्ट होगी कि 90% से? सर कुछ वेबसाइट से सर 0 से 1 लगती है, बाकी सर टॉरेंट में क्या होगा? टोरेंट में तो अगर पॉज और स्टॉप किया तो आप जब स्टार्ट करते हो तो कहां से स्टार्ट होती है? स्टार्टिंग से होती है टोरेंट। स्टार्टिंग से? नहीं यार, कभी यूज नहीं करा टोरेंट का सर, डाउनलोड नहीं तो बता क्यों रहा है? गैस कर रहा था सर। अरे भाई चल कोई ना, कोई ना। 90% से स्टार्ट होती है ज्यादातर, अगर देखोगे 90%, अगर तुम्हारा कनेक्शन वो वाला ना हो, एकदम वो वाला। हाँ सर विडमेट में आता शायद टोरेंट। हाँ हाँ, 90% से होती है ज्यादातर टाइम। जब आप कोई भी फाइल भी डाउनलोड देख लो, आपने कोई भी डाउनलोड करी, स्टॉप किया और रिज्यूम किया, तो ज्यादातर वो होता है वहीं से स्टार्ट हो, राइट एवरीवन? यस सर। तो जो आपका और जो टीसीपी है, वेबसाइट भी जो आपकी वेबसाइट, जैसे आप HTTP सर्च करते हो, तो जब वेबसाइट आपको मिलती है तो आप चाहोगे ना कि वो जो वेबसाइट मिले आपको वो पूरी मिले, मतलब उस पर कुछ भी मिसिंग ना हो, कोई भी फॉन्ट या कोई भी पेज या कोई भी वर्ड मिसिंग ना हो, राइट एवरीवन? यस तो सर। वो भी आपका वर्क करती है किस प्रोटोकॉल पे? TCP भी। TCP मीन्स रिलायबल बिकॉज इट प्रायोरिटाइज। एंड ऑल्सो जब ये आप 90% देख रहे हो और रिज्यूम भी वहीं से हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका बैकअप बना रहा है वो फाइल का, कि वो फाइल वेस्ट नहीं हुई, राइट? वो फाइल कहीं वेस्ट नहीं हुई, दैट मीन्स वो बैकअप बना रहा है कहीं ना कहीं। वो भी किस पे वर्क करता है गाइस? डाउनलोडिंग वाला भी TCP पे, बिकॉज इट प्रायोरिटाइज योर डाटा ओवर स्पीड, राइट एवरीवन? भले ही मैं टॉरेंट से डाउनलोड करो, रात में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, पर मैं चाहता हूं मेरी डाटा पूरा का पूरा प्रिजर्व्ड रहे, राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? That's why TCP is a reliable, because it prioritize your data. You can also write data delivery, right? कि मैं डाटा को खराब नहीं होने दूंगा, हैम्पर नहीं होने दूंगा, करप्टेड नहीं होने दूंगा, बाकी स्पीड में थोड़ा टाइम ले सकता है, राइट एवरीवन? ओ भाई, ओ कौन चक्की पे है, आवाज कर रहा है? यस सर। चक्की पे हो गया कोई? ऊपर ऊपर नीचे बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है। चलो, अंडरस्टूड एवरीवन? अरे जॉनसन, तुम वहां साइड पे हो क्या? इतनी वो जो हो रही है आवाज वहीं की है क्या? नहीं सर, मेरा नहीं है, किसी अच्छा, और के इसमें आ रहा है। ठीक है ठीक है, मुझे लगा तुम सीमेंट में उठा के फेंक रहे हो गई। चलो नहीं सर, आज नहीं है। चलो ठीक, कल होगा? हाँ सर, कल तो है। चलो ठीक। इसमें वो भी होता है मोर्टार वगैरह, मोर्टार कुछ होता है। चलो, अंडरस्टूड एवरीवन? ये चीज समझ गया TCP? यस यस सर। यस सर। इसमें एक और प्रोटोकॉल होता है जिसे हम कहते हैं गाइस UDP सुना है किसी ने? इट इज यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। जॉनसन, आपको कितने साल हो गए वर्क करते हुए सिविल में? सर अभी तो डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, अभी 1 साल से सीख रहा हूँ सर, ट्रेनिंग में। अच्छा अच्छा, तो साइट इंजीनियर में हो कि डिजाइनिंग वाले में हो? कॉन्ट्रैक्टर सर। अच्छा ठीक। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनरिलायबल। अनरिलायबल मींस अनट्रस्टवर्दी, राइट? यस सर। स्ट्रीम देखता है कोई किसी की? यस सर। किसकी देखते हो? याद नहीं। अरे किसी की तो देखता होगा यूट्यूब पे। हाँ नहीं सर। सर कैरी। कोई कैरी चलो ठीक है, ठीक, कैरी देखते हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप देखते हो लाइव स्ट्रीम, लेट सपोज आपने स्टार्ट किया 1080p पे कुछ देखना, क्वालिटी आपकी है 1080p, राइट? यस सर। देखते देखते कभी कभी होता है कि बीच में जो क्वालिटी वो गिर के 240p या 360p हो जाती है, 144p हो जाती है, राइट? यस सर। राइट। तो वो जो लाइव स्ट्रीम है ना, वो वर्क करती है आपकी
यूडीपी पे, बिकॉज इट प्रायोरिटाइज क्या, स्पीड ओवर डाटा डिलीवरी, स्पीड ओवर डाटा डिलीवरी। दैट मीन्स आप देख रहे हो यार, ठीक है, देखते देखते क्वालिटी कम हो गई, दैट मीन्स कुछ पैकेट जो ड्रॉप हो गए, राइट, आपकी क्वालिटी कम हो गई, राइट। पर आपको क्या चाहिए, स्ट्रीम जो है, वो जो लाइव स्ट्रीम वो कंटिन्यूस चलती रहे, स्पीड मिलती रहे, राइट। भले ही मेरी डाटा जो है कुछ चीज मुझे समझ ना है बीच में, पर मैं चाहूंगा कि मेरी स्पीड जो है मिलती रहे, भले ही थोड़ी क्वालिटी कम हो जाए, पर कंटिन्यूस चाहिए मुझे, राइट। और आप नहीं चाहोगे कि यार अगर मैं 1080p पे देख रहा हूं तो 1080p पे ही चलता रहे कंटिन्यूस, क्योंकि अगर लेट सपोज 1080p हुई और कहीं ना कहीं कम हुआ, मतलब क्वालिटी कम हुई, तो आप नहीं चाहोगे बफरिंग होगी, राइट, बफरिंग हो, ताकि वो जो डाटा गिर रहा है, जो जा रहा है, वो उसको वापस प्रिजर्व करा जा सके, राइट। तो आप नहीं चाहोगे बफरिंग हो या फिर रुके मेरी लाइव स्ट्रीम, आप चाहते हो कंटिन्यूस, भले ही थोड़ी क्वालिटी कम हो पर चलती रहे, कंटिन्यूस हो, राइट। लाइक मैं जूम कर रहा हूँ अभी, जूम रिकॉर्डिंग भी जो हो रही है, वीडियो जो हो रही है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इसमें भी कुछ चीजें वर्ड कभी कभी क्या हो जाते हैं, नहीं सुनाई देते, राइट, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो पर आप क्या चाहते हो, कंटिन्यूस रहे, एक दो वर्ड ना समझे ठीक है, पर वो कंटिन्यूटी रहे, स्पीड रहे, राइट एवरीवन, राइट एवरीवन। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इज एज यूडीपी अनरिलायबल, बिकॉज स्पीड का भरोसा नहीं है, और सॉरी डाटा का भरोसा नहीं, बोलता है डाटा तुम्हारा भाड़ में जाए, मैं स्पीड दूंगा, स्पीड लो। लेट्स सपोज मैं तेज तेज बोल रहा हूँ, कहीं कहीं इंटरनेट अगर कनेक्टिविटी तेज नहीं हो तो मेरे कुछ पैकेट ड्रॉप होंगे आप लोग के एंड पे, राइट, बट कंटिन्यूटी रहेगी, राइट एवरीवन। जैसे वो बोल रहे थे अभी कि ब्रेक हो रहा है, सब ब्रेक हो रहा है, दैट मींस कुछ डाटा डाउन हो रहे, गिर रहे हैं, कुछ पैकेट्स ड्रॉप हो जा रहे हैं जो पहुंच नहीं पा रहे, पर कंटिन्यूस था ना, तब भी ब्रेक हो रहा था, तब भी कंटिन्यूटी थी, राइट। तभी वो किस पे वर्क करता है गाइस, यूडीपी पे। अंडरस्टूड एवरीवन? प्रवीण, सुमित, युवराज, रोहतस, अनन्या, Yes, sir. जॉनसन, Yes, sir. अंडरस्टूड ना? Yes, sir. Yes. ग्रेट। इसमें एक और चीज आती है पोर्ट नंबर, जो मैं आपको बताऊंगा जब मैं एक एग्जांपल दूंगा। इसमें एक और चीज आती है पोर्ट नंबर, ठीक है। टीसीपी यूडीपी हो गए, वो किस मीडियम से ट्रांसपोर्ट होता है, और एक पोर्ट नंबर भी होता है जो मैं आपको बताऊंगा सही टाइम पे। नाउ गाइस, व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नेटवर्क लेयर? नेटवर्क मतलब जो सबसे पहले किसी ने बोला था, कनेक्टिविटी, राइट। Yes, sir. तो डिफरेंट नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी का काम किस पे है, नेटवर्क लेयर पे, वो रिस्पॉन्सिबल है कनेक्टिविटी का। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेसेस आते हैं। एनीवन कुड गेस नेटवर्क लेयर में कौन से एड्रेसेस आते होंगे जिसपे ये पूरी आपकी नेटवर्किंग चल रही है? आरडीपी, आरडीपी, आरडीपी क्या होता है? मैसेजेस। वी कॉल्ड इट एज आईपी एड्रेसेस, राइट एवरीवन। नेटवर्क लेयर में क्या होते हैं आपके? आईपी एड्रेसेस। IP address. आईपी एड्रेसेस में भी दो तरह के होते हैं, IPv4 और IPv6, राइट। IPv4 जो है खत्म हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तभी हम लोग IPv6 की तरफ आ रहे हैं, पर अभी भी हर जगह ग्लोबली IPv4 यूज हो रहे हैं। IPv6 भी इज द फ्यूचर, कहीं कहीं आ गए पर पूरी तरह से अभी नहीं आए। And in our study we will only learn about IPv4, right everyone? And there is also ICMP, IGMP और भी आते हैं जो मैं, आप जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा आप समझते रहोगे, राइट एवरीवन, अंडरस्टूड? Yes, sir. राइट। नाउ इन डाटा लिंक लेयर एंड ऑल्सो नेटवर्क लेयर में एक अप्लायंस यूज होता है और एक नेटवर्किंग डिवाइस यूज होता है जो इन आईपी एड्रेस को समझता है, उसे क्या कहते हैं हम? Router, sir. एग्जैक्टली वी कॉल्ड इट एज राउटर। लेयर 3 स्विच भी होता है, पर क्या डिफरेंस है उसे मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी सिर्फ राउटर समझो, ठीक है। नाइस नाइस। डाटा लिंक लेयर पे भी एक एड्रेसेस होते हैं गाइस, कौन से? एनीवन कुड गेस? मैक एड्रेस,
किसी ने सुना है नाम मैक एड्रेस का? नो सर, मैकबुक का सुनिए। हाँ तुम तो वही सुनोगे, मैक एड्रेस। और इस पे कौन सी डिवाइस यस होती है? सर, सुना है मैंने। किसने सुना है? सर कंप्यूटर का भी एक मैक एड्रेस होता है। प्रवीण, राइट। सर मैं प्रवीण। हाँ यस सर, हाँ मैक एड्रेस। राइट राइट। और इधर भी कोई डिवाइसेस होती है जो मैक एड्रेस को समझती है, वो क्या नाम है? नहीं पता। स्विचेस, ठीक है। स्विचेस ट्रांसलेट व्हाट? मैक एड्रेस। जरा डिफरेंस समझते हैं आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस पे, राइट? एक डिफरेंस समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और बहुत इजी भी है। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड। आईपी चेंजेबल होता है बट मैक एड्रेस चेंजेबल नहीं होता है। नाइस नाइस, गुड प्रवीण। Let's just understand one more difference to understand what is the basic difference between IP and MAC address, right? Let's suppose करें ये दिल्ली में एक वो पोस्टमैन आया, he wants to deliver a post in our office, मतलब मेरे ऑफिस में, साकेत जहां मेरा ऑफिस है, क्रॉस सिक्योरिटी में एक पोस्ट डिलीवर करना चाहता है ये पोस्टमैन, ठीक है गाइस? लेट सपोज करते हैं मेरे पास 4 एरिया है मेरे दिल्ली में। लेट सपोज ये नेहरू प्लेस है, ये सरोजनी नगर है, ये लाजपत नगर है, और ये साकेत है जहां पे मेरी ऑफिस है, ठीक है गाइस? साकेत, राइट एवरीवन? एंड ही वांट्स टू डिलीवर पोस्टमैन टू क्रॉस सिक्योरिटी, दिस इज माय क्रॉस सिक्योरिटी, राइट? तो पहली चीज, पोस्टमैन पोस्ट पे क्या दिखेगा गाइस? First thing, what he will see in the post. These are 4 areas, right? And he wants to deliver in this cross security, in this socket. तो postman guys सबसे पहली चीज क्या देखेगा अपने पोस्ट पे? सर पिन कोड या फिर आपका पहले जगह एरिया? का वो देखेगा। यस सर, एरिया। एग्जैक्टली, दिल्ली में है, एरिया देखेगा भाई कौन से एरिया में ये पोस्ट मुझे पहुंचाना है। तो आया क्या देखेगा? साकेत, साकेत आ गया। नाउ जब साकेत में आएगा तो क्रॉस सिक्योरिटी एक ही बिल्डिंग थोड़ी ना है, साकेत पे बहुत सारी बिल्डिंग है, राइट? राइट। तो अब इसको कैसे पता चलेगा पोस्टमैन को मुझे कहां भेजना है? तो वो एक क्या देखेगा जब साकेत में आ जाएगा? एक स्पेसिफिक एड्रेस। तो एरिया के बाद एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा बिल्डिंग का, राइट? लाइक D91, D43, लेन 2, स्ट्रीट 5, 6, 7, कुछ भी, कुछ एक स्पेसिफिक एड्रेस है, राइट? लेट्स सपोज तो देखा स्पेसिफिक एड्रेस क्या है? D57 इज अ क्रॉस सिक्योरिटी। सो वो क्या कर देगा? यहां डिलीवर कर देगा, राइट प्रवीण? स्पेसिफिक एड्रेस देखेगा ना एरिया के बाद। एरिया आया, साकेत आया, देखा फिर क्या है? स्पेसिफिक एड्रेस क्या है? D58 फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर क्या है? देखा ये एड्रेस है, तो क्रॉस सिक्योरिटी पे उसने डिलीवर कर दिया, राइट एवरीवन? यस सर। राइट। द सेम वे गाइस, ये जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ना, ये आपके लोकेट करते हैं नेटवर्क को। ये जो नेटवर्क है, ये जो 4 एरिया, इसको समझो नेटवर्क, 4 नेटवर्क है, लोकेट करता है। तो देखा आईपी एड्रेस से यार कौन से मुझे नेटवर्क पे जाना है? साकेत के नेटवर्क पे जाना है। साकेत के नेटवर्क में मुझे कहां पे भेजना है? क्रॉस सिक्योरिटी, एक स्पेसिफिक एड्रेस चाहिए। तो वो जो स्पेसिफिक एड्रेस होता है गाइस, वो होता है मैक एड्रेस। सपोज करिए जो बिल्डिंग थी साकेत पे क्रॉस सिक्योरिटी, ये सारी बिल्डिंग, ये सब क्या है? डिवाइसेज हैं, एंड समवन वांट्स टू कम्युनिकेट विद दिस डिवाइस ऑफ क्रॉस सिक्योरिटी, तो इसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा। वो स्पेसिफिक एड्रेस क्या होगा गाइस? मैक एड्रेस, राइट एवरीवन? राइट? यस सर। जॉनसन अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Yuvraj understood, right? That means, Yes, sir. let's suppose there is a Yuvraj Singh, Yuvraj Kumar, Yuvraj Sharma, Yuvraj Malhotra, Yuvraj, whatever Yuvraj. There's a network of Yuvraj is going on, right? But the Yes. Yuvraj face is specific. जो उसका चेहरा स्पेसिफिक है, right? तो जो उसका चेहरा है वो उसका मैक एड्रेस है। अगर मेरे पास 10 लोग है युवराज से, युवराज सिंह, शर्मा, कर्मा, कुछ भी, तो युवराज एक नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, पर उससे मुझे जिससे बात करनी है उसका एक स्पेसिफिक चेहरा होगा, राइट? तो वो स्पेसिफिक चेहरा क्या है? मेरा मैक एड्रेस। सो द स्पेसिफिक एड्रेस इज माय मैक एड्रेस। तो ये आपका फिजिकल एड्रेस है, चेंज नहीं होता। ये आपके डिवाइसेस में पहले से ही एक NIC कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसके ऊपर बर्न होता है, मतलब उसके ऊपर लिखा रहता है। जब वेंडर बनाता है तो उसके ऊपर पहले से ही लिखा रहता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हर डिवाइस का एक NIC कार्ड होता है।
ग्रीन कलर का, ये देख रहे हो हर डिवाइस पे होता है, इस पे ही मैक एड्रेस बर्न होता है, राइट एवरीवन? राइट। और हमेशा याद रखना गाइस, हमेशा याद रखना कि हर डिवाइसेस को अगर कम्युनिकेट करना है तो उनके पास दो चीज जरूर होना चाहिए हमेशा, एक आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। विदाउट दीज टू एड्रेसेस द डिवाइसेस कुड नॉट कम्युनिकेट, राइट एवरीवन? अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं आपको अपने सिस्टम का भी दिखाऊं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैं आपको अगर दिखाऊं, ऐसे डरना नहीं कोई, हाँ कि सर ये क्या दिखा रही है, दिखा दिया, बस समझो, इनसाइट लो, ज्यादा मतलब सोचो नहीं। ये मेरा IPv4 एड्रेस मतलब ये मेरे डिवाइस का एड्रेस है ये, ठीक है? और ये फिजिकल एड्रेस जो देख रहे हो ना, ये मेरे डिवाइस का मैक एड्रेस है। सो मैक एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड एज फिजिकल एड्रेस, राइट एवरीवन? ये सब आप समझ जाओगे जब तक एंड होगा ना जब ये कोर्स, तो आप ये सब समझ जाओगे सब क्या है सर, ठीक है एवरीवन? दिस इज माय मैक एड्रेस, दिस इज फिजिकल एड्रेस, और ये आईपी एड्रेस जो मेरे डिवाइस का है 1.12। चलो अनन्या, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके सुमित, यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फिजिकल से क्या समझते हो यार? फिजिकल मींस हार्डवेयर। हार्डवेयर, एग्जैक्टली, एनीथिंग यू कैन टच। सो फिजिकल मींस द सेम चीज, केबल हो गए, कनेक्टर हो गए, पिंस हो गए, सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है? हार्डवेयर कंपोनेंट ही हो। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, right? And right everyone understood? यस सर। ओवरव्यू समझ लिया सबने? चलो अब समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। व्हाई ऑल द नेटवर्क इंजीनियर्स अभी भी OSI मॉडल समझा रहे हैं, क्यों? इसी पे क्यों वर्क करते हैं अभी भी, और जबकि TCP/IP इंडस्ट्री में वर्क करता है क्यों? लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट। This is your OSI model, whereas this is TCP/IP model, right? क्यों OSI मॉडल पढ़ा रहे? क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस क्या हो गया है, ये फिजिकल और ये डाटा लिंक लेयर को मर्ज करके बना दिया गया है नेटवर्क एक्सेस लेयर, whereas this network layer has been changed into internet ट्रांसपोर्ट, जो है ट्रांसपोर्ट ही है, whereas ये तीन को मर्ज करके बना दिया किसमें? एप्लीकेशन, राइट एवरीवन? दैट्स वाई सभी इंडस्ट्री में भी OSI मॉडल को ही समझाते, क्योंकि ये डिटेल वे में बताता है कि डाटा ट्रांसलेट कैसे होता है, राइट? अगर आप डिटेल वे में समझ लोगे तो इसमें तो ऐसे ही समझ लोगे TCP/IP, राइट? दैट्स वाई आज भी नेटवर्क इंजीनियर्स जो हैं इसी पे काम करते हैं, OSI मॉडल पे। और ऑल्सो गाइस these are 7 layer model and it is start from bottom to up, right? Layer 1, this is layer 2, this is layer 3, this is layer 4, 5, 6 and 7, right everyone? Understood? That's why आप देखते हो कभी कभी L2 प्रॉब्लम, L3 प्रॉब्लम, L1 सपोर्ट, L2 सपोर्ट, L3 सपोर्ट, ये इससे रिफर करता है, ठीक है? That what it means जब आप जॉब देखते हो कभी कभी। अगर L2 प्रॉब्लम है गाइस, L2 प्रॉब्लम मींस डाटा लिंक लेयर में प्रॉब्लम है, L3 प्रॉब्लम मींस नेटवर्क लेयर, L4 प्रॉब्लम मींस ट्रांसपोर्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? मैं बोलूं मैक एड्रेस में प्रॉब्लम है, मैक एड्रेस मतलब डाटा लिंक लेयर,
IP is the problem network layer. Right, everyone? Okay. Yuvraj, understood? Yes, sir. Right. Praveen, Sumit, Rotas? Yes, sir. Great. अब लास्ट टॉपिक करते हैं. लेट्स the last topic is how the data is translated by this OSI model. ठीक है, ये समझते हैं लास्ट चीज. लेट्स सपोज करो ये डिवाइसेज हैं और ये एक सर्वर है. राइट एवरीवन? अभी एग्जांपल ले रहे हो, इतना सोचना नहीं, बस एक एग्जांपल की तरह समझना इसको. हाँ, बाकी आप समझ बाद में समझ जाओगे सब. एग्जांपल ले रहे हो, आईपी एड्रेस है 1.1 और इसका मैक एड्रेस है 0 है. ये क्या होता है आईपी एड्रेस, कैसे लिखते हैं, ये सब मैं बताऊंगा. अभी बस एग्जांपल से समझो, ठीक है? अब इनसाइट लो बस. और इसका भी है 1.2 और 0 भी है मैक एड्रेस. राइट? लेट सपोज ये एक सर्वर है, आपने रिक्वेस्ट करी किसकी? वेब सर्विस के लिए. वेब सर्विस की आपने रिक्वेस्ट करी, डेट मींस आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है. तो गाइस कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा वेबसाइट के लिए? Repetition. नो, अभी बताया था मैंने. वेब सर्विस या वेबसाइट अगर एक्सेस करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTTP. राइट? The protocol. Yes, sir. राइट राइट राइट. सो जो आपकी रिक्वेस्ट है HTTP रिक्वेस्ट, दिस इज योर HTTP रिक्वेस्ट. ठीक है, इसको मैं डाटा लिख रहा हूँ. यही आपका डाटा है, रिक्वेस्ट ही आपका डाटा है. राइट? दिस इज योर डाटा रिक्वेस्ट. जो आपने रिक्वेस्ट करी ये डाटा है. राइट? ये डाटा का डाटा एप्लीकेशन लेयर पे आया, प्रेजेंटेशन लेयर पे आया. प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा? इस डाटा को ऑर्गेनाइज कर देगा. राइट? अपना कुछ हेडर लगा देगा. ठीक है, फिर ये जो डाटा है, डाटा प्लस ये प्रेजेंटेशन लेयर, ये नीचे आया. राइट? इसने एक सेशन क्रिएट कर दिया. किसने? सेशन लेयर ने. राइट गाइस? नाउ गाइस अंडरस्टैंड, मैं इस सबको डाटा ही लूंगा. ठीक है, तो ये पूरे का पूरे को मैं अब डाटा समझ रहा हूँ. ठीक है, ये पूरे का पूरा डाटा आया नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर में. गाइस HTTP जो है किस प्रोटोकॉल पे वर्क करता है? ट्रांसपोर्ट के. अभी बताया था मैंने, TCP और UDP. TCP. TCP. राइट? तो अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेके हेडर लगाएगा अपना क्या? TCP. राइट एवरीवन? और इसके आगे मैंने बताया था एक पोर्ट नंबर लगता है. मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट में पोर्ट नंबर, और मैंने बोला था एग्जांपल में बताऊंगा. ठीक है, पोर्ट नंबर लगता है HTTP का 80. समझते हैं अब ये पोर्ट नंबर क्या होता है. राइट? एक वॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर में, एक वॉल है पोर्ट नंबर्स की. ठीक है, ये गेट्स है, 1 2 3, बहुत सारे गेट्स है. राइट? आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट हुई. हर प्रोटोकॉल की ना, जैसे HTTP प्रोटोकॉल है उसका एक नंबर है. लेट सपोज HTTP का 80, SMTP मतलब मेल ट्रांसफर का 25, फाइल ट्रांसफर का 21. राइट? तो जिस चीज के लिए रिक्वेस्ट होगी ना, उस गेटवे के थ्रू वो रिक्वेस्ट जाएगी. तो लेट सपोज मेरी रिक्वेस्ट किसकी? HTTP की. तो वो वेब सर्विस एक्सेस करनी है मुझे, तो ऐसे जाएगी. अगर मेरे पे मेल सर्विस की रिक्वेस्ट होती तो यहाँ से जाती. अगर 21 होती तो 21 से होके जाती, इस गेटवे से होके जाती टू रीच द सर्वर. बिकॉज गाइस एक ये सर्वर जो है ये सिर्फ वेब सर्विस थोड़ी ना एक्सेस कर रहा होगा, या वेब सर्विस थोड़ी ना सर्विस दे रहा होगा. बस ये तो आपको अगर HTTP दे रहा है तो ये आपको SMTP भी दे रहा होगा, FTP भी दे रहा होगा. राइट? बहुत सारी सर्विस दे रहा है भाई. सर्वर है, हाई एंड डिवाइस है, बहुत सारी सर्विस देगा. राइट? तो इसको कैसे पता चलेगा ये जो डाटा है आपका ये किस सर्विस के लिए? तो आपके डाटा के साथ ना ट्रांसपोर्ट लेयर एक पोर्ट नंबर लगाती है. तो जैसे ही वो ये डाटा के साथ ये पोर्ट नंबर लेगा 80, और व्हेन इट रीचेस टू सर्वर
तो सर्वर देखेगा डाटा क्या है और फिर देखेगा पोर्ट नंबर। जैसे देखेगा पोर्ट नंबर 80 तो ठीक है, इसको रिप्लाई देना किस लिए, वेबसाइट के लिए। अगर ये 25 होता तो मेल के लिए, 21 होता तो फाइल ट्रांसफर के लिए। तो जो पोर्ट नंबर होते हैं इट डिटरमाइंस फॉर विच डाटा और फॉर व्हाट एप्लीकेशन योर डाटा इज फॉर। मतलब ये जो डाटा था ये किस एप्लीकेशन के लिए, इट इज फॉर मेल ट्रांसफर और फॉर वेबसाइट और फॉर फाइल ट्रांसफर, राइट। सो पोर्ट नंबर डिटरमाइंस फॉर विच एप्लीकेशन द डाटा इज meant for, राइट एवरीवन। तो HTTP का क्या है, पोर्ट नंबर 80। एक ये टेबल है जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसको रट लेना क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछता है, और वो जैसे जैसे आप आगे चलोगे वो समझ लोगे, याद रहेगा वो, क्योंकि वो बार बार आता रहेगा पोर्ट नंबर और ये सब, राइट। एवरीवन अंडरस्टूड? युवराज, अनन्या, कार्तिक, सुमित, एवरीवन अंडरस्टूड? नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। ग्रेट यार, ग्रेट। Johnson, okay, right. I'm again taking this whole thing as data only. It comes down to network layer. मैं डाटा ही ले रहा हूँ फिर से। नेटवर्क लेयर पे कौन से एड्रेसेस थे गाइस? नेटवर्क लेयर पे कौन से एड्रेसेस थे, अभी पढ़ा था हमने। आईपी एड्रेस। एग्जैक्टली। सोर्स आईपी क्या है, कहां से रिक्वेस्ट आई है? 1.1 से। व्हाट इज द डेस्टिनेशन आईपी, कहां जाना है? 1.2। 1.2 एग्जैक्टली। अब ये पूरे के पूरे डाटा को, फिर डाटा ही ले रहा हूं मैं, और नीचे आया डाटा लिंक लेयर में कौन से एड्रेसेस होते हैं गाइस? मैक एड्रेस। व्हाट इज द सोर्स मैक एड्रेस? 0A, राइट। डेस्टिनेशन क्या है? 0B। अब ये पूरे के पूरा फिजिकल लेयर में और वायर में थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये कहां पहुंचा? रिसीवर एंड पे, सर्वर के पास। अब सर्वर भी करेगा अपना भाई OSI मॉडल के थ्रू ट्रांसलेट डाटा। फिजिकल लेयर इस पूरे डाटा को ऊपर लाया। अच्छा, डाटा लिंक लेयर को क्या मतलब, डाटा क्या है? डाटा लिंक लेयर तो क्या समझ सकती है, सिर्फ मैक एड्रेस, राइट। डाटा लिंक लेयर सिर्फ मैक एड्रेस समझती है। सोर्स मैक एड्रेस क्या है सर गाइस, कहां से आया था मैक रिक्वेस्ट? 0A से आई थी। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है गाइस? 0B। क्या ये 0B है? क्या ये 0B है गाइस? यस। यस, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी का डाटा जो है ऊपर भेज दिया। अगेन नेटवर्क लेयर पे आए। नेटवर्क लेयर को क्या मालूम ये डाटा क्या है, वो क्या रीड करता है? सिर्फ आईपी एड्रेस। सोर्स आईपी क्या है गाइस? 1.1। व्हाट इज द डेस्टिनेशन आईपी? 1.2। क्या ये 1.2 है? यस, ये है 1.2। इसने भी क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बाकी का डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर में पहुंच जाए। ट्रांसपोर्ट लेयर में पहुंच के फिर देखेगा डाटा से कोई मतलब नहीं क्या डाटा है, वो देखेगा क्या, प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? TCP, दैट मींस रिलायबल। फिर देखेगा पोर्ट नंबर क्या है, 80। जैसे ही देखेगा 80, अच्छा ये वेब सर्विस के लिए है डाटा, दैट मींस किस एप्लीकेशन के लिए, ये वेब सर्विस के। जैसे 80 देखा तो ये क्या करेगा, ये जो बाकी का डाटा ऊपर भेज देगा, सेशन क्रिएट कर लेगा, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर देगा, और जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट है वो कहां पहुंच जाएगी गाइस? एप्लीकेशन लेयर पे, राइट। अंडरस्टूड दिस थिंग एंड दिस प्रोसेस? या जॉनसन टेल मी। पोर्ट 80 के बारे में वापस बताओ सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। पोर्ट 80 क्या है? मतलब हर सर्विस ना, हर प्रोटोकॉल का एक पोर्ट नंबर होता है, समझ रहे हो, जो बताता है, जो डिटरमाइन करता है ये जो डाटा है किस एप्लीकेशन के लिए। तो लेट सपोज करो पोर्ट नंबर 80 है, ठीक है यार, ये वेब सर्विस के लिए। अगर पोर्ट नंबर 25 हुआ, ये मेल सर्विस के लिए। अगर पोर्ट नंबर 21 हुआ तो फाइल सर्विस। तो ये प्री डिटरमाइंड एक कांस्टेंट वैल्यू है जो बताती है किस एप्लीकेशन के लिए आपकी रिक्वेस्ट है, मतलब आप क्या एक्सेस करना चाहते हो, कौन सी एप्लीकेशन, राइट। दिस इज व्हाट इट मेंट बाय पोर्ट नंबर। अगर HTTPS होता सिक्योर, HTTP होता है SC, अगर HTTPS होता सिक्योर, सिक्योर के लिए होती है 443, ठीक है। तो आपकी रिक्वेस्ट 443 से होके जाती। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। सर ऐसा बस हो गई सर, जैसे दिल्ली में बस चलती है 400। अरे 422। बिल्कुल बिल्कुल। लाइव एग्जाम्पल। 894 वाले, 507 हाँ वाले। सर। कौन वाले हो तुम? सर 473। 473 वाले हो। चलो समझ गए ना कहाँ का स्टॉप है अपना। चलो यस सर। बढ़िया। चलो अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे ओरिजिनल डाटा के साथ हर लेयर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर रही है। हर लेयर, यहाँ पे इसने TCP 80 लगा दिया,
इधर पूरे के डाटा को क्या लगाते हैं, आईपी लगाते हैं, और इधर मैक एड्रेस। सब लेयर कुछ ना कुछ ओरिजिनल डाटा के साथ अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करी, राइट? राइट गाइस? Right. So the process of adding additional information to original data is called encapsulation. Right everyone? And और इधर देख रहे हो, यहाँ पे डाटा से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रिमूव, सॉरी एडिशनल इंफॉर्मेशन रिमूव हो रही है। डाटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस गया, नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस गया, इधर क्या गया, टीसीपी और पोर्ट नंबर गया, और ओरिजिनल डाटा ऊपर पहुंचा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिमूव हो रही है। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओरिजिनल डाटा इज कॉल्ड डी इनकैप्सुलेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? युवराज, साहिल, Yes. अंडरस्टूड ना? Sir. प्रवीण, ऋतिक, रोतस, Yes, sir. great, great. Ananya, understood? Right. And the last topic, guys, a 2-minute topic more. Right. युवराज कहाँ रहता है भाई? कड़कड़ूमा, करकटडूमा। आर्यनगर। हाँ, उसके हाँ, पास समझ just आर्यनगर। हाँ, वहां से मेट्रो स्टेशन कितना किलोमीटर दूर है? Sir, होगा हाफ होगा। तो यार जो किलोमीटर है वो एसआई यूनिट है डिस्टेंस की। किलोमीटर। हाँ, डिस्टेंस की एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट होती है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हाँ, स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। Yes, sir. हाँ सर, वेट की क्या होती है, केजी या ग्राम Yes, sir. केजी या ग्राम। या। तो जैसी उनकी एसआई यूनिट होती है, वैसी हर लेयर पे ना ये जो डाटा है पूरे का पूरा, इसकी भी एक एसआई यूनिट होती है, जिसे हम कहते हैं क्या है, जिसे हम कहते हैं पीडीयू, विच इज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। प्रोटोकॉल डाटा, राइट एवरीवन? दिस इज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। जैसे एसआई यूनिट होती है रियल लाइफ पे, वैसी यहाँ पे होती है प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। तो Yes. जब ये डाटा के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो अपनी लगाती है ना हर लेयर, उसको कुछ कहते हैं। तो समझते हैं वो क्या कहते हैं? तो फ्रॉम एप्लीकेशन टू सेशन लेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट इज कॉल्ड एज डाटा ओनली। डाटा को डाटा ही कहते हैं, ठीक है। पर जब ये डाटा के साथ ये टीसीपी प्रोटोकॉल लग जाए, और टीसीपी यूडीपी कोई भी प्रोटोकॉल लग जाए ट्रांसपोर्ट लेयर का, और पोर्ट नंबर लग जाए, तब इस पूरे के पूरे डाटा को कहते हैं हम क्या, सेगमेंट। जब ये पूरे के पूरे सेगमेंट नीचे आता है और उस पर जब आईपी एड्रेस लग जाते हैं, तो इसको कहते हैं फिर हम आईपी पैकेट्स। और ये जब पूरे का पूरा आईपी पैकेट के नीचे आता है और फिर इस पे मैक एड्रेस लग जाते हैं इस डाटा में, तो बन जाता है ये फ्रेम्स। राइट एवरीवन? और आखिरी में होता है बिट्स। फिजिकल में बिट्स तो सब में ही होते हैं, क्योंकि डिवाइसेस बिट्स ही समझती है, पर ओरिजिनली बिट्स कहाँ कहा जाता है, फिजिकल लेयर में। राइट? इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कभी कभी। राइट एवरीवन? अगर मैं बोलिए फ्रेम से दिक्कत है, मतलब किस पे दिक्कत है, डाटा लिंक लेयर में। अगर मैं बोलिए सेगमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है। आईपी पैकेट मतलब नेटवर्क या आईपी एड्रेसेस में। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. राइट एवरीवन? आज का सेशन सबको समझ आया? कोई डाउट है तो पूछो यार। क्लियर हो गया ये चीज, पीडीयू क्या होता है? यस सर। यस सर। कुछ पूछो यार, कुछ भी डाउट वाउट हो यार, कुछ पूछना है बताओ मुझे। सिलेबस और बुक बता दो अब बस। बुक मैं देखो एक ग्रुप बना रहा हूँ, मुझे ना आप सब लोग क्या करो ना, इस पे मुझे मेल करो, रुको मैं सब So कुछ, WhatsApp group या फिर Gmail? मैं टेलीग्राम बनाता हूँ यार, टेलीग्राम बन जाएगा। सर नहीं ऐप को डाउनलोड करवा रहे हो सर। क्या सर अब टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। कर ले भाई। सर एक सर ने Download जीमेल पे करना करा, पड़ेगा। एक सर ने व्हाट्सएप पे करा, और सर आप भाई जीमेल पे कैसे Telegram। ग्रुप बनते हैं ये बताओ मुझे। सर जीमेल ने पे ऐड मेल करवाया आता है। अरे वो जीमेल का क्या सीन है, पहले मैं जीमेल पे कर रहा था, और मैं जीमेल में सबको भेज रहा हूँ, तो कोई बोलता है अगले दिन सर आया नहीं, सर पहुंचा नहीं, सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो मैं बोला भाई टेलीग्राम पे बनवा लेता हूँ मैं, ठीक है। हैंगआउट्स, हाँ क्या, हैंगआउट्स जीमेल। हाँ अरे क्या करना ना, मुझे मेल पे बस ये इस पे मेरे मेल आईडी पे
मैसेज करना, मैं आप सबको टेलीग्राम का लिंक भेजूंगा, आप सब ज्वाइन हो जाना उसमें, ठीक है? उसपे सारे आ जाएंगे, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, कोर्स करिकुलम मिल जाएगा, सारा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सब कुछ, ठीक है? Okay. यस एवरीवन सर। याद से कर देना। सर मैं आप- कुछ पूछ